Good morning. Exercise 4.2, third sum, one part was left. Yesterday we found out the GST payable by Amir Enterprises and Akbari Brothers. But there was one more step which we did not do it. That is very simple. This we had done till here. मैंने लिखा है Amir Enterprises GST payable 300 कल आ गया था ये आंसर. They have asked us to find out the CGST and SGST. What is the formula? CGST और SGST is GST by 2. तो 300 का आधा 150. Same for Akbari Brothers GST payable. We calculated rupees 400. So CGST SGST is GST by 2. That is 400 by 2. That is 200 rupees. So this sum is over now. We move on to the next sum. That is Malik Gas Agency. The fourth one, Malik Gas Agency, we'll see what it is. Simple sum hai. I'll read out the sum. Malik Gas Agency, Chandigarh Union Territory. Now even if they use the word Union Territory, उसमें कुछ changes नहीं है. That is same as SGST and CGST. There is no change. Purchase some gas cylinders for industrial use for rupees 24,500. So what did Malik Gas Agency do? Purchase some cylinders, okay? Then later on sold them to local customer. 24,500 में खरीदी किया. Sold out to a local customer for 26,500. दो वैल्यूज आ गए हमारे पास. एक परचेस, एक सेल. Find the GST to be paid at the rate of 5%. GST दोनों पे 5% फाइंड आउट करनी है. एंड हेंस CGST अभी उन्होंने UTGST बोला है. UTGST is why? Because Chandigarh comes in Union Territory to be paid for this transaction. For अभी देखो उन्होंने हिंट दिया आप लोगों को. For Union Territories there is UTGST instead of SGST. Means जो SGST है वही UTGST होने वाला है. So they have given a hint over here. So we have got two figures with us. So we'll do the fourth sum. पहले हम लिखेंगे output tax. Output tax will be 5% of 26,500. Remove percentage sign, multiply. That comes out to be 1225. Output tax आ गया. Same way calculate input tax. दोनों 5% है. 5% of 24,500. That is 5 upon 100 into 24,500. That is 12. Okay, this is output tax is 1325. 1225. Now we have to find out GST payable. क्या फॉर्मूला है? कल हमने बहुत सम सॉल्व किए थे. आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बड़ा नंबर 1325, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा वो. दैट कम्स आउट टू रुपीज 100. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट CGST is nothing but UTGST is nothing but GST by 2. GST हमारा 100 रुपया है, उसका आधा होता है CGST और UTGST that is rupees 2 1 2 5 0. सम इज ओवर. सिंपल था सम. सिर्फ यहाँ हमें देखना है आउटपुट टैक्स 5% ऑफ दिस, इनपुट टैक्स. यू ऑल शुड नो आउटपुट टैक्स कौन सा है, इनपुट टैक्स कौन सा है. नाउ आउटपुट टैक्स इज एट द टाइम ऑफ सेल एंड इनपुट टैक्स इज एट द टाइम ऑफ परचेस. ये ध्यान में रखना है. अगर आपको लिखना है तो इसके नीचे लिख दो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेस. तो फिगर्स में ये हिंट नहीं दी हुई है, बड़ा है छोटा है, उसकी कोई ऐसी हिंट नहीं है. तो सेल परचेस ये वर्ड से आपको डिसाइड करना है विच इज द आउटपुट टैक्स एंड विच इज द इनपुट टैक्स. नाउ वी आर कमिंग टू द फिफ्थ सम. Mrs. Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth rupees 6,000. 6,000 के कॉस्मेटिक्स पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे 18% GST लगता है.
एंड सोल्ड टू अ कस्टमर, कस्टमर को बेचा तो उसने 6,000 के प्रोडक्ट 10,000 में बेचे फॉर ₹10,000. What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? अभी टैक्स इनवॉइस में कौन से वैल्यूज इशू किए हैं, दैट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट. Now I have also shown you all the video that this chapter is not deleted. So if you there is a rumor viral हो गया एक वीडियो कि ये omit कर दिए, दो lessons delete कर दिए, it is not so. Everything is as it is. Okay. So we are on the 5th one. So first we will write down Mrs. ब्यूटी टैक्स इनवॉइस बनाना है. ब्यूटी प्रोडक्ट क्या किया उन्होंने, पेड जीएसटी 18% ऑफ जीएसटी ऑन प्रोडक्ट्स वर्थ, कौन से प्रोडक्ट्स, ₹6,000 बराबर, एंड सोल्ड दीज प्रोडक्ट्स टू कस्टमर. क्या रेट पे बेचा उसने, 10,000 पे बराबर. 6,000 के प्रोडक्ट उसने 10,000 पे बेचे. जीएसटी रेट कितना है दिया हुआ है, प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स इट इज 18%. तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी जीएसटी बाई 2 फॉर्मूला है, दैट इज 18/2 9%. दोनों ये दोनों 9% आ गए. आई विल नॉट राइट इट बट इट इज अंडरस्टूड ऑलवेज. सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम होते हैं. Okay, sum is not over. Now next is we have to find out amount of CGST is 9% of 10,000. That is 9/100 into 10,000. That is ₹900. Okay. And next we can directly write down amount of CGST is equals to amount of SGST, that is ₹900. That's all. So this sum is over. इसको बहुत अलग अलग तरीके से किया हुआ है, but I wanted to follow this method. Now the next two sums, 6th and 7th, I will explain one and you will do the 7th one on your own. ध्यान से उसको देख लो. 2 सम है, इनवॉइस बनाना है, मीन्स आपको इनवॉइस कैसे बनाते हैं शॉपकीपर्स. 2 सम्स आ रहा है 6th and 7th. प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. राइट द नेम ऑफ द सप्लायर. कभी भी आपके पास कोई इनवॉइस आया तो जरूर पढ़ना उसको. सप्लायर का नाम होगा, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस. ओके, उन्होंने पूरा बना के दिया है. तो आई वॉन्ट टू डू दिस ऑन योर ओन. इफ यू वॉन्ट टेबुलर फॉर्म आई विल सॉल्व फॉर यू. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, you have a helpline over here on page. They have given one invoice. उसके हिसाब से दोनों सम सॉल्व करने. पेज 82 को रेफर करो. पेज 82 पे उन्होंने एक टैक्स इनवॉइस दिखाया हुआ है, वैसा ही आपको बनाना है. सप्लायर वगैरह सब 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 लिखना है. सो यू कैन चेंज द नेम ऑफ सप्लायर, बट देन GSTIN, इनवॉइस नंबर, डेट, वो आप अपने मन से डाल सकते हो. ओके. नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर. 2 प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो इनवॉइस में डालने के लिए. रेट ऑफ मोबाइल बैटरी ₹200, GST 12%, HSN 8507 उसका कोड है, 1 पीस. सेकेंड, रेट ऑफ हेडफोन ₹750. रेट ऑफ GST ऑन हेडफोन इज 18%. उसका HSN, अभी HSN हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है. देखो ऊपर दोनों अलग है. मोबाइल बैटरी का अलग है, हेडफोन का इज डिफरेंट. 8518. और कितने पीस है, दोनों एक एक पीस ही है अपने पास. तो विल गो बैक टू पेज 82.
अभी 82 में इफ यू गो टू सी दे हैव गिवन एवरीथिंग. So this supplier name and everything you will write on your own. This is with some now sixth one. You have to refer to page 82. Tabular form में invoice दिया हुआ है. I will not write down supplier name. You will write down on your own invoice number. Only calculation part I will show because you people will not know how to do it. Invoice date ये सब भर देना आप अपने आप से. Okay, fill this information. Then I start with the invoice. Serial number. S number is what it is. दो ही प्रोडक्ट है हमारे पास. Serial number. फिर आएगा HSN code. Then it will come name of the product. कौन से दो प्रोडक्ट है उनका नाम आएगा क्लियरली. दो चीजें हमारे पास. Okay, rate. Okay, and then quantity. How many pieces? 1 piece, 2 piece, 3 piece. ठीक है. Okay, my table will not be sufficient. I have to use a smaller line. Rate के बाद में आएगा quantity. Quantity के बाद में आएगा taxable amount. Taxable amount क्या है? उसके बाद में आएगा CGST, that is rate and tax. Rate and tax. फिर आएगा SGST. SGST में भी फिर से आएगा रेट एंड टैक्स. बोथ द सम्स आई विल ट्राई टू सॉल्व बिकॉज आई केप्ट द टेबल रेडी विद मी. और लास्ट आएगा टोटल. अभी टेबुलर फॉर्म मैंने पूरा बना दिया है तो मैं 7 सम भी सॉल्व करने वाली हूँ बिकॉज आई गॉट द टेबल रेडी विद मी. नाउ HSN कोड क्या है? चलो क्वेश्चन को रेफर करो. HSN फर्स्ट सीरियल प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है? ओके, इसका HSN कोड है 85. दोनों का लिख लेती हूँ. सेकेंड का हेडफोन का HSN कोड 8518. नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी. नेम ऑफ द प्रोडक्ट हेडफोन. ठीक है. रेट, अभी उसका रेट कितना है? रेट इज ₹200 एंड योर रेट इज ₹750. पीसेस कितने? 1 पीस. Here 1 piece. Taxable amount will be same 200 रुपए. Taxable amount जो रेट है वही है ना, उस पर टैक्स लगेगा ना 750. अभी कितना है उन्होंने बोला इधर? They have told us something. हाँ, GST मोबाइल बैटरी पे है 12%. तो इसका कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6%. ओके, and tax will be okay. I'll have to calculate the rate. Rate will come here. Okay, I'll do the calculation part. So I need some small space over here to show you all the calculation part. इधर rate में क्या लिखना है हमें? ठीक है. Rate में हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं. हमें rate में क्या लिखना है ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका. तो हम लिखेंगे CGST is equals to 6% of 200 and that is 6 upon 100 into 200, that is 6 2 are 12. बराबर. And again here CGST is 9% of 750, that is 9 upon 100 into 750, that comes to 5 2s are 10, 5 1s are 5 5s are 25, that is 9 into इसका 2, इसका आ जाएगा 2 4s are 8, 4.5 आ जाएगा 9 का आधा. तो इफ यू मल्टीप्लाई इट कम्स टू 67.5. आई होप इट इज क्लियर. कैलकुलेशन की है हमने. ठीक है. नाउ ओवर ईयर 6 आएगा ये. CGST रेट ऑफ CGST विल कम 6%. ओके, और उसका अमाउंट आ रहा है टैक्स का 6%, 12%. इधर आएगा बिकॉज हेडफोन का कितना है 18%. 18 का आधा 9 और इधर आएगा 67.5. SGST भी सेम रहने वाला है. बराबर. वी नो ना CGST SGST सेम. ठीक है. These two columns are same, we know ना. जो CGST है वही SGST होता है. नाउ ओवर ईयर टोटल में क्या हो जाएगा? देखो
टोटल क्या आएगी, रेट, CGST, SGST, 212 plus 12 that is rupees 224. क्लियर? एंड इसका अमाउंट है 750. 750 में क्या ऐड करोगे, 67.5 एंड 67.5 दैट कम्स टू 885. ओके, तो ये आ गया रुपीज में 885. तो अब शोन यू हाउ इट इज कमिंग. टोटल कैसे आता है, टोटल आता है रेट, CGST टैक्स, ये दोनों को ऐड करके टोटल आ रहा है. देखो मैं इसको गोल कर दिया, 212 12 750, 67.5 and 67.5 is 885. So done with this sum. Now I will do the last sum also because मेरा टेबल रेडी है, लेकिन लास्ट सम में एक चेंज है. The question is more or less same. Now we go to the last sum for the day, that is the 7th one on page 94. अभी देखो यहाँ था प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर और इधर है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस. मीन्स एक शॉपकीपर दूसरे शॉपकीपर को अगर बेच रहा है तो. ओके, सो आई विल दिस टेबल आई विल नीड ओनली वन चेंज वी हैव टू डू ओवर हियर इज आई टेल यू व्हाट, सिर्फ रेसिपिएंट नेम आता है इसमें. सप्लायर की जगह आपको रेसिपिएंट, रेसिपिएंट इज व्हाट. अच्छा, सप्लायर विल आल्सो बी देयर. सप्लायर की जगह मुझे और एक ऐड करना है, मैं रेड पेन से लिख रही हूं. उसका हम लिखेंगे रेसिपिएंट का नाम. रेसिपिएंट मीन्स जो रिसीव करने वाला है. ओके, दिस इज सम नंबर 8. 7 सम में नहीं था रेसिपिएंट, तो दिस इज ओनली ट्विस्ट ओवर हियर. तो 6 सम में क्या था, बिजनेस टू कंज्यूमर, तब रेसिपिएंट का नाम नहीं आता है. बट व्हेन इट इज बिजनेस टू बिजनेस तब रेसिपिएंट का नाम आता है. रेस्ट एवरीथिंग यू हैव टू फिल, नेम, एड्रेस, स्टेट, GST/NI, इनवॉइस नंबर, डेट. रेसिपिएंट का भी नेम, एड्रेस, स्टेट, तो आपको लिखने का काम ज्यादा है. ये सब चीजें सप्लायर की भी लिखनी है और रेसिपिएंट की भी लिखनी है. रेसिपिएंट इट्स गिवन ऑन पेज 94. रेसिपिएंट का क्या क्या लिखना है, नेम, एड्रेस, स्टेट एंड GST/IN. अगेन 2 items are there. Which 2 item? पेंसिल बॉक्स 100, HSN कोड दिया है, रेट ₹20. सो हम अभी इधर फिल करना शुरू करेंगे कि चलेगा. तो यहाँ आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द रेसिपिएंट नेम. ओके, रेसिपिएंट का भी सब कुछ लिखना है. इज दैट क्लियर? हाउ मेनी पीसेस I'll have to rub this. So I'm taking some time because my table is ready, so I can write here directly. ठीक है, so I'll start. Now what they are given first, item first is pencil boxes, HSN code, sorry what it is, HSN code 3924 पेंसिल बॉक्स का. दूसरा क्या है, जिक्सॉ पजल. सांप सीढ़ी जो खेलते हो आप, उसको जिक्सॉ पजल बोलते हैं. ओके, पेंसिल बॉक्सेस और ये है जिक्सॉ पजल. एक्चुअली ये तुमने खुद ही करना चाहिए. ओके, नो रेट कितना दिया है, 100. रेट इज ₹20. क्वांटिटी 100 है. रेट इज ₹100, क्वांटिटी 50 है, ध्यान दो. सो टैक्सेबल अमाउंट 20 into 100 2000. टैक्सेबल अमाउंट 5000. ओके, अभी ये रेट फाइंड आउट करना है. अभी उसका GST इसका कितना है, इट विल बी व्हाट, 12% दिया है ना. GST पेंसिल बॉक्स का 12% दिया है एंड इसका दिया है जिक्सॉ पजल का GST दिया है. दोनों का 12 ही है, दोनों का सेम है, तो 12 का आधा हो जाएगा 6. 6% ऑफ व्हाट इट विल कम, 6% ऑफ 2000 बराबर, दैट इज 6/100 into 2000, that is 120. Is that clear? Now here it is again 6% of 5000.
6% of 5,000, that is 6 upon 100 into 5,000, that is 300 rupees. Now you have to fill the amount. अभी rate कितना है? Now rate is, we'll go to the table. I have to see whether taxable and this. Okay, rate is 6%. इधर भी 6 आएगा, टैक्स आ जाएगा उसका 120 रुपए, और इसका आ जाएगा 300. तो ये सेम रहने वाला है इधर. लकीली इन दोनों का जीएसटी सेम है. फर्स्ट सम में सेम नहीं था. तो टोटल मैंने क्या बोला था, कैसे मिलेगा रेट? ओके, रेट अभी इसका टैक्सेबल अमाउंट प्लस दिस, सो दैट विल कम आउट टू, वी हैव टू ऐड 120 मैं करके दिखा रही हूं, 120, दैट इज 2240 बराबर. एंड नेक्स्ट इज 5,000, 300, 600, that is 5,600. Okay, total rupees, that column last you will make and you will add this. Okay, it is given on page 82. सिर्फ total rupees एक column. I have done the calculation, so I've got no place. total rupees में आप CGST को add करोगे, means इसको और इसको add करके लिखोगे, and SGST को add करके लिखोगे, and final total को add करके यहाँ लिखोगे. Here, if you want, I'll show with red pen. That which I have not done, but you will do it. टोटली करना है बस आपको. CGST का टोटल इधर आ जाएगा, नीचे लिखना है, इधर जगह नहीं इसलिए मैं इधर बना रही हूँ. इसका टोटल दोनों को टोटल करके. ओके, 300 कितना हो जाएगा, 420. ये भी जो ये है वो ये है, नो चेंज. दिस विल बी डिफरेंट. 0, 4 and 0, 4, 6 and 2, 8, 5 and 2. पहले वाले सम का भी ऐसे टोटल करना है. ओके, दैट विल बी बिलो दिस. Because I've shown the calculation, there is no space. Now, sum number 8 और sum number 7 में क्या difference है? There is a difference. If you prepare the invoice, उसमें recipient के बारे में कुछ नहीं लिखा. इसमें हमें recipient का सब लिखना है. Supplier, invoice, GSTN, then date, everything we have to write. Okay, that's all. And this Sunday, which test? I've checked your papers, and this Sunday I think your school exams are starting anyway, but still be prepared for financial planning 4.1 and 4.2 test. Thank you.